شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام، شلوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستوں جو فرینڈز آف کرائسٹ ٹیم کے دوست فرینڈشپ ایونجلزم میں بزی ہیں، ان کو سلوٹ کرتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں، جو دوستانہ طور سے مسیح مصلوب کی دعوت دیتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ خدا انہیں پیار کرتا ہے، کیونکہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچ جائے۔ ہمارا مضمون چل رہا ہے کہ دراصل فلسطینی یا فلسطی ہیں کون؟ فلسطینی جو ہیں، جو آج کا فلسطین ہے یا فلسطین ہے، یہ پہلے کون تھے؟ ان کو بائبل میں کیا کہا گیا ہے اور یہ فلسطین کیسے بن گئے؟ تو میں پہلے جب آپ پانی پینے کے لیے گئے تھے اور یہ سیشن کا اینڈ تھا، تو میں نے یہ بتایا تھا کہ جو گرائے گئے فرشتے ہیں، انہوں نے انسان کی بیٹیوں کے ساتھ شادی کی اور ان سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ جبار تھے، وہ اناک تھے، وہ جائنٹ تھے، وہ اناکیم تھے، اور وہ اس طرح سے خدا کے خلاف ہو گئے اور خدا کی مخالفت میں کھڑے ہوئے کہ کیوں خدا نے آدم کو بھی آؤٹ کر دیا اپنی حضوری سے، اور جنہوں نے جو ایسے سمجھ لیے کہ جنہوں نے بھی خدا کی مخالفت کی، یا جنہوں نے حکم عدولی کی، یا جنہوں نے خدا کی بات کو نہ سمجھا یا نہ سمجھنے کی کوشش کی، ان کو خدا نے دور کر دیا، رد کر دیا، نکال دیا، اور انہوں نے پھر اپنی طرف سے ایک تخلیق کی جسے ہائی بریڈ کہا جاتا ہے۔ اور ہائی بریڈ والے جو تھے وہ ایسی مخلوق تھی جو انسان اور جانوروں کے ساتھ مکس کر دی گئی، اور ان کے مکس کرنے کی وجہ سے نوح کے ٹائم پر، آپ پیدائش کی کتاب پڑھ کے دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ انسان نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا اور خدا نے فیصلہ کیا کہ میں اس کو ختم کر دوں گا، اور خدا نے بڑا فلڈ بھیجا، بڑا طوفان آ گیا، آسمان کے دریچے کھل گئے، زمین کے سوتے پھوٹ نکلے، پانی ہی پانی ہو گیا، اور سب جس کے نتھنوں میں زندگی کا دم تھا وہ ڈوب مرے۔ اور جب مر گئے تو آگے ان کا سلسلہ کیسے ہوا؟ یہ انسان نے پھر ایک ایسی بے عقلی کی کہ آج تک آج کی دنیا کے انسان بھگت رہے ہیں، اور وہ تھا نوح کا بیٹا حام نے ہائی بریڈ کی بیٹی سے شادی کی، یا اس وقت تو شادیوں کا ایسے ہی رواج تھا کہ اکٹھے رہتے تھے، مل کر رہتے تھے، اور ایک بندے کی کئی بیویاں تھیں، لیکن خدا نے حکم دیا تھا نوح کو کہ ایک لڑکا ہے تو ایک ہی اس کی بیوی ہونی چاہیے۔ تو اب نوح جو تھا وہ اتھارٹی والا باپ تھا، اور اس کی بیوی ایک وفادار اور تابع دار عورت تھی، چنڈالن نہیں تھی، اور یہ نہیں تھی کہ بندہ خدمت کر رہا ہے اور بیوی اس کا جلوس نکال رہی ہے۔ تو وہ ایک وفادار اور خدا ترس اور آدمی کی وفادار سگڑ بیوی تھی، تو اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ جو تمہارا باپ کہتا ہے وہی کرو۔ تو ایک بیٹے نے اپنی پسند کی جو بھی عورت تھی، میں نہیں یہ کہہ سکتا وہ خوبصورت تھی، چھوٹی تھی، بڑی تھی، جوان تھی، پتلی تھی، موٹی تھی، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ان کی ماں نے، کیونکہ ماں ایک طرح کی
वज़ीर थी, और नूह जो है वो एक बादशाह है, और बेटों को बात करने वाली, समझाने वाली उनकी माँ है। बाप सिर्फ ऑर्डर करता है, माँ उस ऑर्डर को मनवाती है, लागू करवाती है। और माँ ने कहा कि जो तुम्हारे बाप ने कहा है कि एक लड़की तुम्हारे साथ होनी चाहिए, जो भी आपको चाहिए बस एक ले आओ। अब ये कहा गया जो भी चाहिए एक ले आओ, तो सिम ने अपनी बीवी एक ले ली जो उसकी चहेती थी, और हाम ने अपनी ले ली जो चहेती थी, और याफ्त ने अपनी ले ली जो चहेती थी। अब वो कश्ती में आ गए, 8 जानें हो गई, नूह और उसकी बीवी, सिम और सिम की बीवी, हाम और हाम की बीवी, याफत और याफत की बीवी, और जानवरों की जोड़ी जोड़ी, और जो पाक जानवर थे उनके साथ साथ जोड़े आ गए। लेकिन थे जोड़े, ये नहीं कि एक मेल है और उसकी 7 फीमेल है, नहीं, एक बस। तो जब ये ले लिया गया, ये खुदा का तरीका है। आदम के लिए एक बीवी हवा बनाई। ये दुनियादारी की बात है, ये मुर्गियों की बात है, ये जानवरों की बात है। जिसने भी ऐसा किया है, चाहे वो बाइबल के लोग हैं या बाइबल के बाहर के लोग हैं, जिसने भी ऐसा किया है, उन्होंने बाद में सवाए पछतावे के या परेशानी के कुछ भी हासिल नहीं किया, बेइज्जत ही हुए हैं। भले आप सुलेमान नबी को देख लो, भले आप दाऊद बादशाह को देख लो, वो बीवियों के हत्थे चढ़ गए और खुदा के बंदे होते हुए भी परेशान हुए, उनके बच्चों में भी झगड़े हुए, उनके ख़ानदानों में अबतरी और बदअमनी पैदा हो गई। क्योंकि जो शख्स भी खुदा के कानून व असूल के ख़िलाफ़ चलेगा वो परेशान होगा। बीवी एक ही है और वो खुदा की तरफ से बरकत का ज़रिया है। इब्राहिम के ज़िंदगी में 3 औरतें आईं, लेकिन जो बीवी बन के आई वो थी सारा, और सारा का बेटा इसहाक, और इसहाक की नस्ल आज तक कौम बनी इसराइल है। और कौम बनी इसराइल का मामला, जैसे मैंने पहले बताया था सेशन के एंड पे, कि फ़लस्तीनियों के साथ इनका क्या रौला है, ये क्या झगड़ा है। दरअसल ये बात थी, सिम का डेरा था इस जगह पे। खुदा ने नूह को जगह दिखाई कि चलते चलते उन्हें एक जगह दिखाई कि इस जगह पर तू रुक। और नूह और उसका बेटा सिम, हाम, याफ्त एक जगह पे इकट्ठे हो गए, और उन्होंने एक पहाड़ पर अपना डेरा लगाया। उस पहाड़ का नाम आज भी मोरिया पहाड़ है। और वही पहाड़ बाबे इब्राहिम को दिखाया गया कि इस पहाड़ पर तू कुर्बानी दे अपने बेटे की, या दे, या उसने कुर्बानी के लिए अपने बेटे की जगह बनाई। और उसी जगह पर दाऊद बादशाह ने कुर्बानी दी, अपनी पछतावे की, अपने गुनाह की, अपनी बीमारी की। अरुणा का खेत लिया और वहाँ पर कुर्बानी दी। उसी जगह पर जो जैतून के पहाड़ का साथ का एरिया है, वही बाग अदन का एरिया, एक जगह है बाग का। वैसे तो बाग वो जाता है इराक तक, और वो जाता है हरान तक, यानी कि जो तुर्की के साथ साथ सारा एरिया है वहाँ तक जाता है। दजला, फ़रात, जहून और फैसून दरिया उसी एरिया से निकलते हैं। तो ये सारा एरिया बाग अदन का एरिया है। को हम कहते हैं खुदा ने दुनिया बनाई, सारा दुनिया ही उसका बाग है बेशक, लेकिन हर जगह उसकी चर्च और उसकी इबादतगाह नहीं हो सकती। इबादतगाह वही होती है जो जगह मुकर्रर की जाती है। दुनिया बेशक बड़ी है, लेकिन जो जगह मुकर्रर की गई वो ये दजला, फ़रात, जहून और फैसून, जहाँ जहाँ आपको नज़र आते हैं आप समझ सकते हैं कि इस जगह पर बाग था। ये वो जगह थी जो खुदा ने मुकर्रर की, ये जगह थी जो खुदा की हजूरी की जगह थी। और जब खुदा की हजूरी वहाँ से ख़त्म हो गई तो आज आप देख सकते हैं ये एरिया कितना बंजर है।
है। बेशक उसमें थोड़ा थोड़ा किसी जगह पे आपको रौनक नज़र आती है, लेकिन ज़्यादा बंजर है। और क्यों उन्हीं जगहों पर ये पहाड़ हैं, कोहे सीना, हुरब और या जैतून का पहाड़? क्योंकि खुदा इन्हीं पहाड़ों पर आता था, इन्हीं पहाड़ों पर उतरता रहा, इन्हीं पहाड़ों पर उतर के आदम के पास आता रहा, इन्हीं पहाड़ों पर उसने अपने नबियों के साथ बातें की, इन्हीं पहाड़ों पर से उसने हर एक अपने कलाम को नाज़िल फरमाया। और इन्हीं पहाड़ों में से एक पहाड़ जैतून का है, जहाँ पर से वो दोबारा मसीह यस्सु की सूरत में उठा चला गया। और इन्हीं पहाड़ों के सिलसिले में एक पहाड़ मोरिया है, जिसे कलवरी भी कहा गया है, उस पर उसने जिस्मानी तौर पर कुर्बानी भी दी। ये सारा सिलसिला इसी एरिया का है, इसीलिए कहा जाता है ये अदन का एरिया है। और इसी एरिया में ही नूह रहा, नूह के बेटे से महाम याफ्त रहे, इसी एरिया में बाबा इब्राहिम रहा, इसी एरिया में बाबे इब्राहिम की औलाद माई कतूरा के 6 बेटे, एक बेटा सिम की औलाद में से जो इब्राहिम है, और इब्राहिम का बेटा इस्माइल, उसके 12 बेटे। फिर इसी जगह पर माई सारा का बेटा इसहाक, जिसके 2 बेटे, और 2 बेटों के आगे बड़े बेटे 12 उसके भी बहुत सारे बेटे, उसके तो 100 के तो बहुत ज़्यादा बेटे, सारे सूरमा हैं। और हुआ क्या कि जो हाम, जैसे मैंने कहा है, हाम की बीवी जो थी वो हाइब्रिड वालों की थी। हाम से जो बेटे पैदा हुए वो सूरमा थे, और उन सूरमाओं में कूश एक सूरमा था जिसका बेटा नमरूद था, और उन्हीं की औलाद में से एसौ ने शादी कर ली। और जो फ़लस्तीन है या फ़लस्तीनी हैं, इनको जो फे का लफ्ज़ है वो वे से भी बनता है, वी जो अंग्रेज़ी का वी है, ये PH से भी बनता है फे, और ये F से भी बनता है फे। और जब नफेलियम है और ये नून ख़त्म कर दिया गया, तो यही उसी से ये फ़लस्तीन भी बना। तो ये फ़लिस्ती जो हैं, जब यूनानी यहाँ पर आए, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट जब आया, सिकंदर आज़म जब आया, तो यूनानी ज़बान आ गई, और यूनानियों ने इन जो फ़लिस्ती हैं उनको फ़लस्तीन कहा, जैसे पाकिस्तान को पाकिस्तानी कहा जाता है। तो इसी तरह से उनको जो फ़लिस्ती थे, जिनके बारे में बार बार जिक्र है दलाइला के तलक से, कज़ात की किताब में लिखा है, समसून तुझ पर फ़लिस्ती चढ़ा है। और जब ये यूनानियों ने कहा तो वो कहा कि तुझ पर फ़लस्तीनी चढ़ा है। तो ये वो औलाद है, ये वो लोग हैं जो हाइब्रिड के जीन्स से चलते आए हैं, जो खुदा के ख़िलाफ़ लोग हैं, जिनके अबाव जदाद जाइंट थे। जे आप इनके नक्शो नगार देखें, इनके होंठ, इनके नाक देखें, इनके बदन, इनके जुस्से देखें, आपको पता चलेगा ये नॉर्मल लोग नहीं हैं। इनके तौर तरीके बिल्कुल फ़र्क है, इन्होंने उल्टे पानी को चलना है। और जब ये 691 में जो 5वां खलीफा था, आप इसको, मैं इस्लामिक तारीख़ नहीं आपको पढ़ाने लगा, लेकिन मैं सिर्फ़ आपको एक खाका बताने लगा हूँ। जो 5वां खलीफा था, और वो अमूवी अब्दुल मलिक बिन मरवान जो 5वां खलीफा था 691 में, उस वक़्त उसने इस जगह पर जो सुलेमानी हैकल थी, जब वो टूट गई, गिर गई, तो वहाँ पर उसने ये मस्जिद अक्सा बनाई। ये किबला अव्वल जो था, जिसको कुरान मजीद में भी कहा गया है, जिसको डॉक्टर इसरार अहमद ने बड़ी तफसील से बताया है, जिसे मुख्तलिफ जो उलमा है वो बताते हैं कि वो किबला अव्वल जो था, जिसकी तरफ हज़रत मोहम्मद मुँह करके नमाज़ पढ़ते रहे, भाई वो उस वक़्त तक जो था वो
उस वक़्त तो हैकल की बात बिल्कुल ही फ़र्क है, वो तो 70 में ख़त्म हो गई, वहाँ पर तो हैकल थी ही नहीं। तो वो किस तरफ मुंह करते थे? ये मस्जिद बनाई तो बाद में बनाई गई, जब हजूर का टाइम था वहाँ पर तो मस्जिद थी ही नहीं। वो यरूशलेम की तरफ मुंह करके दुआ करते थे, क्योंकि यरूशलेम की तरफ मुंह करके दुआ करने की बात सुलेमान नबी ने की थी, कि उस सुलेमान नबी की ये दुआ थी कि ऐ मेरे खुदा, मेरी एक तुझसे रिक्वेस्ट है, इल्तमास है कि जो भी कोई शख्स इस तरफ मुंह करके दुआ करेगा तो उसकी सुनना और उसे बरकत देना। हजूर ने भी ऐसा ही किया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसी तरफ मुंह करके दुआ की। बाद में जब उन्होंने खाना काबा जो रवायती तौर पर, तारीख़ी तौर पर, या जो तालमूद के ज़रिया से बात का पता चलता है कि जो इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को जगह दुआ के लिए बना के दी, तो क्योंकि वो मकामी जगह थी, और हजूर ने उस तरफ मुंह कर दिया और कहा कि मुझे वही मिली है, मुझे हुक्म मिला है कि अब यरूशलेम की तरफ मुंह करके दुआ नहीं करनी, अब इस तरफ मुंह करके दुआ करनी। तो इन्होंने इस तरफ दुआ करना शुरू कर दी। अब यरूशलेम का तो खाता ही ख़त्म हो गया, इसराइल की तो बात ही ख़त्म हो गई। जब ये 5वां खलीफा जो 691 में अमूवी खलीफा है, जो अब्दुल मलिक बिन मरवान है, इसने वहाँ पर हैकल तमीर की, जबकि उसको हैकल कह लो, उसको हैकल का तो मतलब होता है ना घर या जगह। तो जब इसने वहाँ पर उसको, मुसलमान अपनी ज़बान में कहते हैं मस्जिद, यहूदी कहते हैं हैकल, और हिंदू कहते हैं मंदिर, और सिख कहते हैं गुरुद्वारा, और क्रिश्चियन कहते हैं चर्च। मकसद है दुआ की जगह। जब उसने ये दुआ की जगह बनाई तो वहाँ पर थे फ़लस्तीनी, वहाँ पर थे जो फ़िलिस्ती थे, वो थे जो हाम की औलाद के थे, जो खुदा के ख़िलाफ़ चलने वाले लोग थे। इन्होंने कहा कि हम यहाँ पर रहने वाले थे, और ये जो इब्रानी लोग हैं, क्योंकि इबर की औलाद है इब्राहिम, इसीलिए इब्राहिम को का जो सिलसिला है उनको कहा गया अबरानी, क्योंकि वो इबर की औलाद से इब्राहिम है, और जो इबर है वो सिम से है, और सिम का बेटा जो अरफक्सद था ये उसकी औलाद है। सिम के 5 बेटे थे, और उसके 5 बेटों में एलाम भी है जो, और असूर भी है जिसको सीरियन कहते हैं। मैं उस तरफ नहीं आपको ले जाना चाहता कि आप के लिए इतना कुछ हो जाए। मैं तो आपके साथ बात शुरू कर दूं तो मुझे तो चाहिए कि आप बैठे रहो और सुनते रहो, और मुझे तो इश्क है बाइबल से, और इश्क है अपने खुदा से। कोई उसकी बातें सुनता जाए और मैं सुनाता जाऊं। आप हिस्टोरिकली आ जाओ, आप रवायती तौर पर बात करो, तालमूद से बात करो, जगराफिये से बात करो, आर्कियोलॉजी की बात कर लो, जगराफिये पे चलते जाओ कि ये कौन सी जगह किस वक्त किसकी थी, तो मैं बताऊंगा आपको। क्योंकि जब आपको किसी के साथ लगाव हो जाता है, फिर मैंने पहले भी कई बार बताया है कि मेरा एक दोस्त था, तो उसके पास एक जानवर था, और मैंने एक बार ऐसे ही एक बात की तो कहने लगा कि इसकी फ़लाँ जगह पे इतने सफ़ेद बाल हैं। तो मैंने कहा तुझे कैसे पता है? कहता ये मेरा जानवर है, मुझे पता है इसका कौन सा नाखन कितना बड़ा है, और इसकी गर्दन के किस हिस्से पे तिल है, और इसके जिस्म पर कितने सफ़ेद बाल हैं और कितने काले हैं, और किस तरह से ये कब गुस्से में होता है और कब ये प्यार में होता है। यह है लगन की बात। जब आपको लगन होगी तो आप हर एक बात को जानेंगे। आइए थोड़ा वक्फा लेकर फिर हम इस सेशन को आगे लेके चलेंगे। मैं चाहूँगा कि ये बात क्लियर हो जाए आज। खुदावंद आपको बरकत दे।